Hello student, myself Nazneen Akhtar. Welcome to my study channel Naz Studies. The topic of today is about translation in prokaryote. Last video we have discussed about the transcription process in both prokaryote and eukaryote. But in the today video we will discuss about translations and how this translation is whole going in the prokaryote. So let's start with the topic translation in our prokaryote. Translation in prokaryote is the process by which the genetic information carried by mRNA it is decoded to synthesize protein. तो ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो mRNA के द्वारा कैरी किया हुआ है वो ट्रांसलेटेड हो जाता है टू प्रोटीन में. इज वेल कंजर्व प्रोसेस इन बोथ प्रोकार्योट एंड यूकार्योट और ये एक वेल कंजर्व प्रोसेस है जो प्रोकार्योट एंड यूकार्योट दोनों में देखा गया है. A translation process where it occur in the cytoplasm and it involve ribosome, tRNA, amino acid raw materials. So what is the raw materials here? What is the equipment, machinery that is required in a process of translation? That is ribosome, tRNA and amino acid is the main raw materials, and it is the last step in gene expression and it is also called as central dogma of life, because from DNA to mRNA and from mRNA to protein, the process which is called as central dogma of life. Highly dynamic process, and it has 4 phases: initiation, elongation, termination and ribosome recycling. So see, this is central dogma of life. Central dogma of life from DNA, it is mRNA and then mRNA to protein. This whole is called as central dogma of life. Now, the machinery which is required to carry out the process of protein synthesis is our ribosome. So, ribosome is the site where the protein synthesis takes place. But in both 70S and 80S, it is 2 types of ribosome which are found both in case of prokaryote and eukaryote. In prokaryote, it is 70S type, and eukaryote it is 80S type. Complex molecular machines found in all living cells, primary site of protein synthesis, and it is made of ribosomal rRNA molecule and numerous protein to form ribonucleoprotein particles. Ribosome has a characteristic of 2 subunit, smaller subunit and larger subunit. Smaller subunit for binding to mRNA, small subunit it is responsible for binding to mRNA. Large subunit help in the formation of peptide bond between amino acid during protein synthesis. Ribosome has 3 main sites: A site, P site and E site. In the A site, the new next amino acid will come having tRNA complex and join the A site, and the P site is peptidyl transferase site, peptide formation take place, and the E site, that is the exit site from where deacylated tRNA cleaved from that site. So in the structure of ribosome, we see the ribosome has a large subunit and a small subunit. Structure of 70S prokaryote ribosome. A prokaryote 70S ribosome, it has 50S and this one is 30S. In between this 30S and 70S, here we are seeing mRNA. This one is mRNA having 5' to 3' site. Besides, ribosome has 3 sites. In the last subunit, A site, P site and E site. P site is your methionine. The amino acid methionine come the initiation along with the initiation code to this site, and A site amino acid after the methionine, that is your initiation codon. Every other amino acid which is coming, they come at the A site, and the E site is our exit site. Process which are found in the translation are initiation, elongation and termination. So now let's look on the initiation. So how the translation begin? Translation begin with the binding of small ribosomal subunit to the mRNA molecules at a specific site, and that site is called as Sine-Delgado sequence. And this Sine-Delgado sequence, it align the mRNA with the ribosome.
there is a specific site in the mRNA, that is signed Dalgano sequence. In this signed Dalgano sequence, they come and align with the ribosome. After that, the initiator tRNA carrying the amino acid methionine, they come and bind to the start codon AUG on the mRNA, and this is also guided by the ribosome. And the last subunit join the complex forming the functional ribosome. Through this diagram, we will discuss how this works. See this one. This is Sil-Dalgano sequence. The Sil-Dalgano sequence is AZZ. In the mRNA, the sequence of Sil-Dalgano is AZZ, and this one is your RNA sequence, and this is having 30S complex. That is 30S smaller subunit. And after the binding of this 30S smaller subunit at the assigned Dalgano sequence site, then the initiator tRNA, that is F-met methionine initiator codon carrying the methionine as amino acid, they come and sit at the P site. After the P site, they come and sit. Then 50S ribosome, they come and join here. So in this way, a complex of functional ribosome is formed, and the factors which are involved are IF1, IF2, and see, this is the structure of tRNA. In the structure of tRNA, this is 3' end. At the 3' end, there is a attachment of amino acid. Okay, tRNA anticodon site where the mRNA codon make a complementary base pairing. यहाँ complementary base pairing होता है, यहाँ amino acid को carry करते हुए tRNA लेके आता है. So whole process of initiation follows like this. First, there is a activation of amino acid. First, there is a amino acid get activated. Then, in this state, we will see the amino acid is activated by forming high energy bond. तो ये क्या करता है, ATP के साथ react करता है. In presence of enzyme amino acid tRNA synthetase, amino acid react with ATP. Okay, and this is catalyzed by amino acid tRNA synthetase. After that, once the amino acid get activated, then it form AMP complex, that is amino acid AMP complex. After the second step is that this activated amino acid, they get transferred to the corresponding tRNA, and tRNA molecule is very specific in carrying this amino acid, because as number of this amino acid, there is as number of the tRNA molecules, and they are very specific. Means particular tRNA carry out particular amino acid to and make a complementary base pairing with the mRNA. So they are very specific in nature, and they say also ensure that the correct amino acid is attached to its specific tRNA, and also the amino acid tRNA synthetase enzyme that help in carrying out all this process. It also means checking out whether the correct amino acid is attached to a specific location or not. So in this way, we will see that once the amino acid attached to the tRNA carrying the amino acid, it can participate in a process of translation. तो एक बार एमिनो एसिड अटैच हो जाता है, ये ट्रांसलेशन प्रोसेस में कैरी आउट करने में हेल्प करता है. दिस इज द डायग्राम वेयर वी विल सी द एडिनिलेशन ऑफ एमिनो एसिड. तो एमिनो एसिड एडिनिलेशन में यहाँ आप हमको देखने मिल रहा है, वेयर दिस इज एमिनो एसिड, दिस वन इज ATP, एंड इट फॉर्म व्हाट, एडिनिलेटेड एमिनो एसिड. एडिनेट किसके प्रेजेंस में हो रहा है, दिस इज डन बाय इन प्रेजेंस ऑफ एमिनो एसाइल tRNA synthetase. After that, the formation of adenated amino acid, they come transfer to the tRNA molecule. तो ये tRNA molecule के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है, and in this way there is a formation or the activation of amino acid. The amino acid इस तरह से एक्टिवेट किया जाता है. In this diagram, what we will see now, see ये 50S 30S ये राइबोसोम पूरा आपका है, और ये इनएक्टिव है. दिस इज इनएक्टिव 70S राइबोसोम. राइबोसोम में अब ये क्या होता है, थ्रू द हेल्प ऑफ IF3 एंड IF1. तो IF3 मेनली हेल्प करती है आपका डिसोसिएशन में, तो डिसोसिएट कर देती है 50S एंड दिस वन इज 50S एंड 30S सबयूनिट. तो ये 30S सबयूनिट दे कम एंड अटैच एट द mRNA. या नीचे देखो लग गया है, एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ IF3 इनिशिएशन फैक्टर. उसके बाद अब वी विल सी डैट कि इसके बाद फर्स्ट मिथ्योनिन F-met tRNA, फर्स्ट मिथ्योनिन tRNA कम्प्लेक्स दे कम एंड बाइट एट द P साइट. तो यहाँ आके F-met मिथ्योनिन ये कम आता है और ये बाइंड करता है कहाँ पर, आपके P साइड में.
दे कम एंड बाइंड एट द पी साइट। जैसे ही यहाँ बाइंड करता है दिस इज, तो ये कौन सा साइट है आपका, ये आपका पी साइट है। पहला साइट जहाँ पर मिथ्योनिन बाइंड करता है उसको हम बोलते हैं पी साइट, ठीक है। ये यहाँ पर इन दिस साइट, ये जो डायग्राम है यहाँ पर पहला मिथ्योनिन बाइंड करता है। आफ्टर बाइंडिंग टू द पी साइट ये क्या होता है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और इसे हेल्प करता है आपका IF2 इनिशिएशन फैक्टर 2। इट हेल्प इन द फॉर्मिंग ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हियर। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स देन 50S सब यूनिट ये आती है और इसमें ज्वाइन करती है और फंक्शनल 70S राइबोसोम को बनाती है। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन प्रोसेस। दिस इज द मेन इनिशिएशन प्रोसेस विच इज टेक प्लेस during translation in prokaryote. Come to the elongation process. तो what happen during elongation? elongation क्या होती है, तो elongation involve 3 प्रोसेस। एक होता है डिकोडिंग, ट्रांसपेप्टिडेशन, ट्रांसलोकेशन। इन तीनों को जाते हुए कंप्लीट होती है elongation, जिसमें राइबोसोम मूव करता है mRNA टू इन ए 5 to 3 days डायरेक्शन। वाइल एट न्यू tRNA मॉलिक्यूल कैरी, और जितने न्यू tRNA मॉलिक्यूल आते हैं दे कम एंड बाइंड टू द कोडोन एक्सपोज इन द राइबोसोमल ए साइट। तो जितने भी इनकमिंग न्यू एमिनो एसिड दे कम आफ्टर द मिथ्योनिन which is bind at the P site. Every new amino acid which come, they come and bind at the A site of ribosome. इसके बाद राइबोसोम कैटालाइज फॉर्मेशन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बिटवीन द एमिनो एसिड, बिटवीन द tRNA इन द पी साइड एंड एमिनो एसिड कैरी बाय tRNA इन द साइड। तो अब पी साइड और ई साइड के एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आफ्टर दैट देन द tRNA फ्रॉम द पी साइड हियर इट एग्जिट टू द ई साइड एंड देन फ्रॉम द ए साइड देयर इज ए ट्रांसलोकेशन फ्रॉम ए टू पी साइड। तो इस तरह से एलोंगेशन प्रोसेस होता है एंड इट इज़ फैसिलिटेटेड बाय एलोंगेशन फैक्टर। यहाँ भी एलोंगेशन फैक्टर आते हैं जो हेल्प करते हैं एंड अलॉन्ग विद द एनर्जी दैट इज GTP, दैट इज गुआनिसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो होल प्रोसेस ऑफ राइबोसोम जब होती है तो पहला डिकोडिंग होता है, मतलब डिकोडेड कैरी, एंड इन दिस वे डिकोडिंग प्रोसेस होता है। ट्रांसपेप्टिडेशन में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बिटवीन पी साइड एंड ए साइड एंड इन दिस वे लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन होता है। देन ट्रांसलोकेशन होता है, राइबोसोम मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड 5 days to 3 days डायरेक्शन एंड देयर इज ए मीन्स tRNA मूवमेंट फ्रॉम ए साइड टू पी साइड। तो ये ट्रांसलोकेशन में आता है। तो इसमें जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है, पहला EFTU है, दूसरा EFGU। EFTU मेनली जो प्रोकैरियोट में है, ये एमिनो एसिड tRNA टू द राइबोसोम को लेकर आते हैं ड्यूरिंग एलोंगेशन फेज। तो इनका काम होता है EFTU का मेनली दे बाइंड टू द इनकमिंग एमिनो एसिड tRNA फॉर्मिंग ए टेरेनरी कॉम्प्लेक्स विद GTP। तो जो हेल्प ऑफ GTP एंड देन इट हेल्प इन डिलीवरिंग द करेक्ट एमिनो एसिड टू द राइबोसोम ए साइड, और ये राइबोसोम के ए साइड में लाने में इसे कोडोन एंटीकोडोन रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। और EFG आपके ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जहाँ पर मूवमेंट ऑफ राइबोसोम होता है 5 days to 3 days डायरेक्शंस। अलोंग इट ऑल्सो चेक देयर आर मूवमेंट ऑफ tRNA फ्रॉम ए साइड टू द पी साइड। तो अब जो न्यू एमिनो एसिड आए हैं द ए साइड इट मूव टू द पी साइड। तो इस तरह से द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में आपके पूरे प्रोसेस चलते हैं। तो यहाँ वही चीज़ दिखाया है, एलोंगेशन फैक्टर EFTU, EFG, EFTS। EFTS का फंक्शन होता है इट हाइड्रोलाइज GTP टू रिलीज एनर्जी। एक तो ये हाइड्रोलाइज करता है GTP को एनर्जी में, GTP NPI में, और फिर से ये GTP भी बनाता है आफ्टर द EFTU, जब आफ्टर द रिलीज ऑफ EFTU फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। में हम वही देख रहे, देखिए पहला हमारा जो एमिनो एसिड है मिथ्योनिन है एंड इट इज़ AUG के साथ ये आपका बेस पेयरिंग कर रहा है कैरी, एंड आफ्टर दैट सेकेंड एमिनो एसिड फिनाइल एनिलीन आया एंड देन इट दिस tRNA कैरिंग एमिनो एसिड देन यहाँ बेस पेयरिंग कर रहा है। फिर तीसरा mRNA का कोडोन के साथ बेस कर। तो इस तरह से ये ट्रिपलेट फॉर्म में आपका कोडिंग और मैसेज का डिकोडिंग होते रहता है एंड दिस प्रोसेस इज योर डिकोडिंग। आफ्टर दैट वी विल सी देखिए एमिनो एसिड में ये 3 साइड है, ए साइड, पी साइड, ई साइड। पहला एरो जो आता है पी साइड में आता है मिथ्योनिन एमिनो tRNA कैरिंग एमिनो एसिड मिथ्योनिन पी साइड में आया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए द बाइंडिंग एमिनो एसिड tRNA, तो इसमें आपका हेल्प करता है। इसमें देखो EFTU कॉम्प्लेक्स अलॉन्ग विद GTP नेक्स्ट एमिनो एसिड आया और ये आगे कहाँ बाइंड हो रहा है आपका ए साइड में। यहाँ ए साइड में होंगे, पहला तो पी साइड में मिथ्योनिन हुआ, सेकेंड एमिनो एसिड यहाँ आया बाइंड हुआ। आफ्टर डेट क्या होता है, पेप्टाइल ट्रांसफरेंस रिएक्शन होता है। मीन्स पी साइड और ए साइड में जो एमिनो एसिड है ये वाला और ये वाला
ये दोनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है तो ये जो pRNA का जो tRNA है ये बाहर निकल गया और ये अमीनो एसिड जो है अब ये tRNA जो ए साइड में है ये इट मूव टुवर्ड्स द फ्रॉम ए टू पी साइड। तो ये tRNA ए से पी से की तरफ चल गया तो ए खाली हो गया, ए बिकम एम्प्टी, पी में आपका आ गया। एंड आफ्टर दैट पी में जो tRNA था वो इट रिलीज फ्रॉम द एग्जिट साइड, यहाँ पर दिखाया है इट रिलीज टू द एग्जिट साइड, फ्रॉम इट इट डीएसाइलेटेड tRNA इट लीव्स। तो पहला फंक्शन आपका क्या होता है, पहला आता है ए साइड में आया, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। आफ्टर दैट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन पी एंड ए साइड, तो इट एमिनो एसिड फ्रॉम पी साइड इट मूव्स टुवर्ड्स द ए साइड हो जाता है। फिर ए साइड का tRNA इट मूव्स टुवर्ड्स द पी साइड, इन दिस वे ए साइड बिकेम एम्प्टी एंड फ्रॉम द पी साइड जो tRNA था ये इट कम आउट थ्रू द एग्जिट। इन दिस वे देयर इज ए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। प्रोसेस हैपन, टर्मिनेशन इज व्हाट, टर्मिनेशन आपका एंड होता है एंड ये तभी होता है जब इट एनकाउंटर विद द स्टॉप कोडन। हमारा स्टॉप कोडन UAA, UAG, UGA। व्हेन द tRNA व्हेन द राइबोसोम एनकाउंटर सच टाइप ऑफ स्टॉप कोडन, इस तरह से आता है जब, तब इस समय इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग टू ए tRNA स्टॉप कोडन आर रिकॉग्नाइज बाय रिलीज फैक्टर। tRNA इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। UAA, UAG और UGA किसका जो आपका जो कोडन से एंटी कोडन tRNA का एंटी कोडन, इस तरह में कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है जो mRNA की ये कोडिंग से मैच कर जाए। तो दे आर नॉट मैच एंड दे आर नॉट रिकॉग्नाइज बाय tRNA, एंटी कोडन tRNA और एंटी कोडन साइट ऑफ tRNA। जब ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है तो इसे रिकॉग्नाइज कौन करता है, रिलीज फैक्टर, और ये आके इनसे बाइंड हो जाता है, आपके राइबोसोम में आके बाइंड हो जाते हैं और हाइड्रोलिसिस कर देते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन का एंड tRNA इन द पी साइड। तो जो tRNA इन द पी साइड है उसके साथ पॉलीपेप्टाइड चेन का हाइड्रोलिसिस कर देता है, तो पॉलीपेप्टाइड अलग हो जाता है, राइबोसोम को डिसोसिएट कर देता है, राइबोसोम भी रिलीज हो जाता है, mRNA को डिसोसिएट कर देता है। तो इस तरह सब चीज़ को ये डिसोसिएट कर देते हैं, रिलीज फैक्टर, एंड इन दिस वे टर्मिनेशन हैपन। इन राइबोसोम हेल्प करते हैं एक सिंगल mRNA मॉलिक्यूल फॉर्मिंग पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम, अलाउइंग द एफिशिएंट प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस चलता है। ऐसे होता है, देखो यहाँ तभी होता है जब UA, UAG एंड UGA आ गया। टर्मिनेशन फैक्टर है RF1, RF2, RF3 है। RF1 और RF2 है, दोनों रिकॉग्नाइज करते हैं UAA, UAG, और RF2 में UGA। मेन डिफरेंस है इसमें भी UA, UA दोनों में है, लेकिन UAG इन केस ऑफ RF1 एंड UGA इन केस ऑफ RF2, यही डिफरेंस है RF RF इनिशिएशन फैक्टर में। RF3 का काम होता है ये स्टिमुलेट करता है डिसोसिएशन ऑफ RF1, RF2 फ्रॉम द राइबोसोम आफ्टर टर्मिनेशन। तो RF3 का काम होता है डिसोसिएशन फ्रॉम द राइबोसोम। इन द एंड देखिए रिलीज फैक्टर आया, ये रिलीज फैक्टर जैसे आके आपके जिस स्टॉप कोडन में आके लग गया तो पॉलीपेप्टाइड को अलग कर दिया tRNA कम्प्लेक्स tRNA के साथ, एंड देन ऑल्सो द mRNA डिसोसिएट हो गया एंड राइबोसोम डिसोसिएट हो गया। तो ऑल दीज आर लेड टू द टर्मिनेशन ऑफ translation. So this is all about translation in prokaryote, which start from initiation, then elongation, then end with termination. So this is all about the today video about translation in prokaryote. Hope you like the video. Please like, share and subscribe my channel. Take a screenshot of it, study in detail. I have given for the whole detailed content on the translation in prokaryote. I hope you like this video. Wait for the next video. Till then, bye.